نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی 15 آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج 16ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کر کے اگر ممکن ہوا تو آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين جی لفظی ترجمہ۔ اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ، آگے بولیں گے اکیلا لفظ کو، اشتروا جنہوں نے خریدا، الضلالۃ گمراہی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی بدلے ہدایت کے، اصل میں با ہوتا ہے ساتھ، تو اس میں ہوگا بالہدی ساتھ ہدایت کے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم با محاورہ کریں گے تو وہ ساتھ کی جگہ پہ بدلے آئے گا، تو بہرحال بالہدی ساتھ ہدایت کے۔ فما پس نہیں، فا کا پس ما کا نہیں، رابحت فائدہ دیا، رابحت فائدہ دیا، تجارتہم تجارت ان کی، تجارت ان کی، وما اور نہیں، کانو تھے وہ، شاباش، مہتدین ہدایت والے یا ہدایت پانے والے، مہتدین ہدایت پانے والے۔ دوبارہ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے، اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ، اشتروا جنہوں نے خریدا، الضلالۃ گمراہی، بالہدی اصل میں بدلے ہدایت کے ہی ہم کریں گے، کیونکہ لفظی ترجمہ میں اگر ساتھ ہدایت کے کریں گے تو وہ پھر با کا معنی آپ کو معلوم ہے، ویسے با کا معنی ساتھ ہوتا ہے، لیکن جملہ کے اعتبار سے کبھی کبھی اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ بالہدی بدلے ہدایت کے، فما بس نہیں، ربحت فائدہ دیا، تجارتہم تجارت ان کی، وما اور نہیں، کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ اب اس کا دیکھ لیتے ہیں با محاورہ ترجمہ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ فما ربحت تجارتہم پس نہیں نفع دیا ان کو تجارت ان کی نے، پس نہیں نفع دیا ان کو تجارت ان کی نے، پس نہیں نفع دیا ان کو تجارت ان کی نے، وما کانوا مہتدین اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے، ہدایت پانے والے۔ جیسا کہ سابقہ اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ منافقین کی بعض صفات کے بارے میں، تو منافقین کا انجام اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ یہ ایسے لوگ ہیں منافقین کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی کا مطلب کیا ہے کہ منہ سے کلمہ تو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود رہے وہ گمراہی پر ہی،
यानी कि हदायत उनके पास मौजूद थी, लेकिन हदायत के बदले उन्होंने गुमराही को खरीद लिया। कितने यानी बेवकूफ़ी वाली बात है कि हदायत अपने पास मौजूद हो, कलमा पढ़ने की सूरत में हम दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए, इसके बावजूद फिर मुनाफिकीन वाला मामला अगर हमारे साथ है, यानी मुनाफिकीन वाली सिफात अगर अल्लाह ना करे किसी के अंदर मौजूद है, तो फिर क्या है कि उसने हकीकत में हदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया। और फिर क्या होगा, जो इसने ये अदल बदल किया है, ठीक है, यानी कि एक चीज को दूसरी चीज के बदल उसने किया है, तो फिर क्या हुआ, फमा रबिहत तिजारतुहुम, ये जो उसने तिजारत की है, तिजारत का मतलब लेन देन होता है ना, तिजारत का मतलब लेन देन होता है। कोई पैसा देता है तो उसको बदले में उसको जो चीज चाहिए वो मिल जाती है, ठीक है। कभी कभी चीजों का भी लेन देन होता है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि पैसे के बदले ही चीज मिलती है, चीजों के बदले भी चीज कभी कभी हम चेंज कर लेते हैं। आप ये मुझसे ले लो, उसके बदले में दूसरी दे दो, होता है ऐसे कभी कभी। तो इसी तरह ये तिजारत का उसूल होता है कि एक चीज देना और दूसरी चीज लेना। तो उन्होंने भी क्या किया, हदायत को दिया, यानी हदायत को छोड़ा और गुमराही को पकड़ लिया, ठीक है। तो ये जो हदायत के बदले उन्होंने गुमराही को ले लिया या गुमराही को खरीद लिया, तो ये भी क्या हो गई, उनकी तिजारत बन गई। तो इस तिजारत के बदले में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फमा रबिहत तिजारतुहुम, उनकी तिजारत ने उनको नफा नहीं दिया, बल्कि क्या दिया, नुकसान दिया। तो नुकसान क्या है, क़यामत वाले दिन नुकसान क्या मिलेगा, दो ही जगह हैं, या जन्नत है या जहन्नम है। तो जो फायदे वाले हैं वो जन्नत में जाएंगे और जो नुकसान वाले हैं वो जहन्नम में जाएंगे। तो इसलिए हमें अपना मुहासबा करते हुए देखना चाहिए कि हम कौन सी तिजारत कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी कर रहे हैं तो हम भी तिजारत कर रहे हैं जन्नत की, ठीक है। बाज लोग, शायद आपने सुना होगा, मीडिया पे ऐसे लोग मौजूद हैं, वो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला की इताअत करते हैं इसलिए नहीं कि हमें जन्नत चाहिए, बस ऐसे ही करते हैं। तो हमें जहन्नम का कोई खौफ नहीं है, हम तो अल्लाह ताला की ऐसे ही इताअत करते हैं ना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, वदऊहु खौफन व तमा, अल्लाह ताला को पुकारो खौफ से भी और तमा से भी। तमा कहते हैं लालच को, तो खौफ किसका, अल्लाह ताला के अजाब का, और तमा लालच किसका, अल्लाह ताला की रहमतों का, बरकतों का, जन्नत का। इसलिए हमेशा याद रखें, जो भी इंसान अमल करे उसके अंदर उसको मालूम होना चाहिए कि ये जो मैं अमल कर रहा हूं ये मेरा अमल कहाँ लेके जाएगा, अल्लाह ताला की खुशनुदी की तरफ या अल्लाह ताला की नाराजगी की तरफ। अगर अल्लाह ताला की खुशनुदी की तरफ लेके जा रहा है तो वो कौन सा अमल है, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाला है। अगर तो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला भी हमसे राजी होगा और उसका अंजाम भी जन्नत की सूरत में इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन अगर मामला इसके बरअक्स है, हम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के बावजूद मुखालफत कर रहे हैं, तो उसका अंजाम भी हमें मिलेगा, वो किस सूरत में, जहन्नम की सूरत में। तो दोनों जो फरीक हैं, इताअत करने वाले और नाफरमानी करने वाले, दोनों हकीकत में तिजारत कर रहे हैं। एक तिजारत कर रहा है जन्नत की और दूसरा तिजारत कर रहा है जहन्नम की। तो हमें अपने अमाल के बारे में देखना चाहिए कि ये जो मैं अमल कर रहा हूँ ये अमल मुझे जन्नत की तरफ लेके जा रहा है, और अगर जन्नत की तरफ नहीं लेके जा रहा तो फिर रास्ता दूसरा है। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के घर में पैदा किया है, तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हर इंसान दुनिया के अंदर तिजारत कर रहा है अल्लाह ताला से, या जन्नत की या अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अजाब से महफूज रखे। तो मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं,
मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्होंने गुमराही को खरीद लिया हिदायत के बदले में, और इन्होंने ये जो तिजारत की है ना, ये जो लेन देन किया है, हिदायत इनको मिल गई कलमा की सूरत में, यानी इस्लाम की सूरत में। अब इस्लाम पर अमल पैरा नहीं हुए तो इन्होंने क्या किया, हिदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फमा रबिहत तिजारतुहुम, उनकी तिजारत ने उनको नफा नहीं दिया। तो जो चीज नफा ना दे वो क्या होती है, वो क्या देती है, नुकसान देती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो मुनाफिकीन हैं ये बड़े ही नादान हैं। ठीक है, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के बावजूद उनकी इताअत नहीं करते। तो ये इनकी बेवकूफ़ी अल्लाह ताला ने आज के सबक में भी और पिछले असबाक में भी वाज़े की है। और अगले अल्फाज में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा कानू मुहतदीन, हकीकत में वो हदायत पर नहीं है। तो जो हदायत पर ना हो वो गुमराह होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम, अगर हमारे अंदर अल्लाह ना करे इस तरह की सिफात हों, तो हम उनको ख़त्म करके अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने लग जाए। सादा सा उसूल है कि इतने जो झंझट है उसको ख़त्म करके सिर्फ काम क्या करना है, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, उसकी बस पासदारी करनी है। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान और सुन्नत को समझने वाले बन जाएं, और जो मुनाफिकीन की जो सिफात हैं अल्लाह ताला हमें उनको समझने और उनसे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। ये याद रखें, उनके बारे में भी इल्म हासिल करना जरूरी है। ठीक है, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उनके बारे में इल्म तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन अमल जो है वो नहीं कर रहे। अमल किया करें, अमल भी किया करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।